So students, good morning to everyone. So we are going to start regarding about the कुछ examination the second chapter जो है उसका पहले हम recalling करते हैं कि कौन-कौन से basic concept आते हैं, कौन-कौन सी हमारी basics formula है, ठीक है? Because बहुत time हो चुका है, so first of all what we have to do, we have to do the revise कि कितनी formula है, ठीक है? We are not going to into the detail में नहीं जाएंगे, but कौन सा concept है वो हमारे mind में आना चाहिए. Then and then we are able to solve that particular MCQs for the good side examinations. Alright, चलो so as we discuss कि आपको एक notes बनानी है, formula की पहले notes बनानी है. इधर मैंने जो concept mentions किया हुआ है उसका आपको क्या बनाना है, notes बनाने भी है. Notes बनाओ कुछ भी 5 पेज कोई भी, but concept आपको लिखना है, ठीक है? वहाँ पे जगह छोड़ दीजिए because कोई दूसरा concept आए तो that you can add. चलो so in this chapter which are the most important chapter, इसमें से 2 से 3 MCQ 100% आएंगे, ठीक है? वो कौन-कौन से आ सकते हैं उसका प्रेडिक्शंस हम करते हैं, उसके बेसिस पे से MCQ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो so first one that will be regarding about the V which is called as a what, which is called as a potential. क्या उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एंड उसका इक्वेशन हमें पता है. कौन सा इक्वेशन होता है? V is equal to KQ divided by R. क्या V is equal to KQ divided by R, ठीक है? चलो सो ये हमें इक्वेशंस याद रखना है, ठीक है? उसमें से कोई भी वैल्यू दिया होगा, चार्ज की वैल्यू है, R की वैल्यू गिवन डेटा है, देन अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, ठीक है? चलो देन सेकंड जो कॉन्सेप्ट है एज वेल एज हमारी जो थियरी में आता है, V is equal to P divided by 4 pi epsilon naught into R square है. इधर क्या है, डिनोमिनेटर में R है, इधर क्या है, R square है, ठीक है? सो ये हमें फोकस करना है, ठीक है? ये भी पोटेंशियल ही है, बट किसका पोटेंशियल है? ये जो पोटेंशियल है which is for the dipole. क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू द डाइपोल. दैट मींस डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल होगा उसका ये इक्वेशन हमें फोकस करना है. यानी कि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा इक्वेशन अप्लाई करें, ये इक्वेशन अप्लाई करें या ये इक्वेशन अप्लाई करें. So therefore we have to read the statement पे डाइपोल होगा तो हमें ये इक्वेशंस अप्लाई करना पड़ेगा. That means what, Kp divided by R square भी हम लिख सकते हैं because as we know that K is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught and K की वैल्यू कितनी होती है, 9 into 10 raised to 9, ठीक है? चलो then regarding about the potential energy को हम U से भी डिफाइन कर सकते हैं. So U is equal to क्या हो जाएगा हमारे इक्वेशंस, U is equal to V into Q. V that means what, which is our potential, and Q that means what, which is our charge. Alright, चलो then another equation for the potential energy. क्या potential energy का कुछ equations, दूसरा equation, suppose we have two charges. How many numbers of charges? Suppose ये कोई charge Q1 है, दूसरा कोई charge Q2 है. Okay, so इन दोनों के बीच का distance suppose we are assuming that R12, ठीक है? So इसकी potential energy का equations हमें लिखना है तो वो कैसे लिख सकते हैं? तो देखो 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 that means ये दो चार्ज है, दोनों का प्रोडक्ट into R12 that means ये डिस्टेंस है उसका लिख देना है, ठीक है? ओके एंड 1 divided by 4 pi epsilon naught क्या है यहाँ पे, 1 divided by 4 pi epsilon naught उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, K भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे K लिखा हुआ है Q1 Q2 divided by R12, ठीक है? चलो देन आफ्टर दूसरी एक फॉर्मूला आएगी हमारी which is important also कि V is equal to E into D. क्या V is equal to E into D. E that means what, E which is we already discussed into the chapter number 1. E which is called as a what, electric field, right? KQ divided by R square, ठीक है? So E D की जगह पे L भी आप लिख सकते हैं, जो भी होगा डेटा में, okay, that will be okay. चलो then उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट आता है which is regarding about the capacitor, right? So कैपेसिटर का हम डिटेल में नहीं जाएंगे बट जनरल फॉर्मूला है उसके बारे में जो डिस्कशंस करें तो C is equal to Q divided by V. क्या C is equal to Q divided by V एंड Q की जो बात करें, Q का यूनिट किस में होता है, कूलम में. सो इधर क्या आ जाएगा, कूलम. V that means पोटेंशियल, वोल्टेज V में से तो उसका यूनिट किस में होता है, V. सो इसका कैपेसिटर का यूनिट कूलम पर वोल्टेज भी हो जाएगा और फैराडे नाम का साइंटिस्ट था उसने डिफाइन किया था. सो व्हाट वी कैन से, द यूनिट ऑफ द कैपेसिटर वी कैन से एज अ फैराड, ठीक है? चलो सो ये हो गया, ऐसा यूनिट में भी आ सकता है एग्जाम में, राइट? चलो नाउ कैपेसिटर आ गया
कैपेसिटर C इज इक्वल टू, दूसरा इक्वेशन है कि तो हमारा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका इक्वेशन हमारी थियरी में डिराइव किया था, तो उसका इक्वेशन क्या है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट मींस व्हाट, ये सपोज हमारा सिंबल हम ड्रॉ करें, वन प्लेट टू प्लेट, दैट मींस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो ये प्लेट है, उसका कुछ एरिया होता है, ठीक है, एंड उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है व्हिच इज कंसीडर्ड एज अ स्मॉल d। सो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाय d, ये इक्वेशन हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, देन अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी, और अभी में से सर एग्जांपल के टर्म्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन टू कैपेसिटर, अभी समझने के लिए हम टू कैपेसिटर को ही कंसीडरेशंस करते हैं कि व्हेन टू कैपेसिटर व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये कौन सा कनेक्शन दिख रहा है, सीरीज कनेक्शन है, तो C1 एंड C2 हम कंसीडरेशंस करते हैं, कुछ वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, सपोज वी आर अज्यूमिंग दैट V जितना वोल्टेज है, ठीक है। सो हमें ध्यान में रखना है कि सीरीज कनेक्शन होगा तो हमारा कैपेसिटर का इक्वेशंस क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय CS, और अभी में से सीरीज व्हिच इज 1 डिवाइड बाय C1 प्लस 1 डिवाइड बाय C2। चलो, इसमें से कौन सा किस टाइप का एमसीक्यू आ सकता है, तो देखो यहाँ पे which value से Q and V। चलो, so for the series connections, क्या कैपेसिटर when they are connected into the series, तब चार्ज क्या क्या होगा, चार्ज सेम होगा और वोल्टेज सेम होगा, ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन। तो चार्ज की बात करें तो for the series connections charge which are the same, क्या चार्ज जो हुए which is our same, alright। चलो, then V that means what, V which is our voltage, okay, so V that means voltage that means what, कि वो होता है वो डिफरेंट होता है, that means यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा for the series connections में, and चार्ज की वैल्यू जो होगी which are the same, ठीक है। सो ये इक्वेशंस हमें ध्यान में रखना है, एंड सपोज n नंबर्स ऑफ चार्ज की कैपेसिटर की जो बात करें तो क्या इक्वेशन हमारा हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय CS, क्या 1 डिवाइड बाय CS दैट मींस व्हाट, सीरीज व्हिच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय C1 प्लस 1 डिवाइड बाय C2 प्लस अप टू सो ऑन 1 डिवाइड बाय Cn फॉर द n नंबर्स ऑफ कैपेसिटर व्हेन दे आर कनेक्टेड इनटू द सीरीज। चलो, देन दे हैव दूसरा कनेक्शन कौन सा होता है, which is our parallel connection, ठीक है। सो पैरेलल कनेक्शंस की सर्किट इस टाइप की हो सकती है, ओके। तो C1 है, C2 है, वोल्टेज हमने अप्लाई किया, दिस इज आवर वोल्टेज। चलो, सो उसका इक्वेशंस वी ऑलरेडी रिटन ओवर हियर, सपोज टू कैपेसिटर व्हिच आर कनेक्टेड इनटू द पैरेलल, तो वी कैन से CP दैट मींस C पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है। एंड बात करते हैं चार्ज एंड वोल्टेज की, when capacitor which are connected into the parallel, तो ये इधर जो लिखा है उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा, that means चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा, क्या चार्ज डिफरेंट हो जाएगा, एंड वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। सो इस पे से 3 से 4 एमसीक्यू इधर आ सकता है, ऑलराइट। एंड सपोज n नंबर्स ऑफ कैपेसिटर होगा तो क्या हो जाएगा, Cp is equal to C1 plus C2 up to so on plus Cn हमें लिखना रहेगा, ठीक है। So this is all about the basic things about this one. So then another one regarding about the capacitor. So regarding about the capacitor, हमारे पास energy stored into the capacitor का एक इक्वेशन हमने डिराइव किया था, ओके। ये भी एग्जाम में आ चुका है, गुजकेट के एग्जाम का ही ये क्वेश्चन है। तो कौन सा 3 इक्वेशंस वी ऑलरेडी डिराइव, ये भी एनर्जी स्टोर इनटू द कैपेसिटर का है, दिस वन आल्सो एंड दिस वन आल्सो, ठीक है। तो कौन सा इक्वेशन से एनर्जी स्टोर इनटू द कैपेसिटर 1 डिवाइड बाय 2 Q इनटू V इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 C इनटू V स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन है Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2C। ये तीनों का तीनों इक्वेशंस व्हिच आर द करेक्ट, ठीक है। सर एमसीक्यू में क्या आ सकता है कि A B C एंड D, तो कोई एक ऐसा ऑप्शन देंगे कि व्हिच आर द रॉन्ग, तो आपको क्या एमसीक्यू में बताएंगे कि यस ये फिनिश हो गया, देन आफ्टर आपको टाइम होगा तो आपको स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। चलो, सो ये हो जाएगा हमारा फॉर द कैपेसिटर। तो
ये एमसीक्यू में आ चुका है, आई थिंक सो 2018 और 19 में एक क्वेश्चन आ चुका है। एंड दूसरी भी बात बता दूं कि ये तीन जो फॉर्मूला है इस पे से 100% 2 से 3 एमसीक्यू आएंगे ही। आपको एनालिसिस करना है वर्ल्ड प्रीवियस पेपर्स का तो आप कर सकते हो, एज वेल एज जेईई नीट की एग्जाम में भी आएगा ही, बिकॉज चैप्टर का इंपॉर्टेंस ही यही है। ठीक है, चलो देन दूसरा एक इक्वेशन है एनर्जी स्टोरेज और कैपेसिटर के साथ में एक कंटिन्यू थियरी है। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसके लिए हमने इक्वेशंस डिराइव किया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ठीक है, सो इतने कॉन्सेप्ट है व्हिच आर वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग, व्हेन वी आर रीडिंग। हम जो कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे, हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो इतने कॉन्सेप्ट तो आपको मिनिमम आने चाहिए। ठीक है, चलो सो इतना कंप्लीट हो चुका है। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ले लो, देन आफ्टर मैं रफ कर लूंगा, मैं क्वेश्चंस रीड करूंगा। सो क्वेश्चन इज व्हाट, q amount of electric charge is present on the surface of the sphere having radius capital R। क्या बताया हुआ है यहाँ पे डेटा में कि q अमाउंट ऑफ द एक स्फीयर है, उस पे चार्ज कोई कैपिटल q है, देन उसकी जो रेडियस है कैपिटल R है। चलो सो क्वेश्चंस में क्या हुआ कि q अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर हैविंग रेडियस कैपिटल R। तो स्फीयर ले लो, उसकी रेडियस कैपिटल R कंसीडरेशंस कर लो। चलो सो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो सपोज V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kq डिवाइड बाय R हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज़ पोटेंशियल का हमने फर्स्ट इक्वेशन से लिखा था कि क्या होगा, हमारा इक्वेशन kq डिवाइड बाय स्मॉल r लिखा था, वहां पे स्मॉल r कंसीडरेशंस किया, इधर गिवन डेटा में ही कैपिटल R है तो कैपिटल R हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो सो कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट ओके। चलो सो ऑप्शन नंबर ए kq स्क्वायर डिवाइड बाय r, ऑप्शन नंबर बी 1 डिवाइड बाय 2 kq स्क्वायर डिवाइड बाय r, ऑप्शन सी kq स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर, एंड ऑप्शन नंबर डी 1 डिवाइड बाय 2 kq स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। चलो सो किसी को आंसर पता है तो दे हैव टू राइट द चैट सेक्शंस में, आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, सो देन आफ्टर वी आर गोइंग टू सॉल्व। किसी को नहीं पता तो टाइटल भी ओके, हम सॉल्व करेंगे ये अभी, बट किसी को आंसर पता है ओके। वालिया प्रिया ऑप्शन बी, ऑलराइट ओके। नंदिनी ऑप्शन बी, ऑलराइट। दिशा पटेल ऑप्शन बी, ओके। प्रार्थना शाह ऑप्शन ए, ओके। चलो देन मानसी पटेल ऑप्शन सी, ओके। चलो ओके, रिपीट द क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चंस क्या है हमारा, q अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर हैविंग रेडियस कैपिटल R। एक स्फीयर है, उसका चार्ज कैपिटल Q है एंड उसकी जो रेडियस है कितनी है, कैपिटल R है। सो कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड दीज आर द ऑप्शन, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऐसा कुछ क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, चलो सो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा व्हाट वी कैन से दिस वन। हमें क्या फाइंड आउट, ओके तीसरा पटेल ऑप्शन बी। चलो सो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी व्हिच इज आवर करेक्ट आंसर, दैट मींस दिस वन। बट वो कैसे आता है, ओके, बिकॉज़ बहुत सारे चैट सेक्शंस में ए बी सी ऐसा कुछ वेरी हो रहा है। सो चलो कैसे आता है वो, इसके बारे में हम डिस्कशंस करते हैं। What we have to find out, we have to find out the total energy of the system। एनर्जी का वर्ड आएगा तो आप क्या अप्लाई कर दोगे डायरेक्टली कि एनर्जी स्टोर इनटू द कैपेसिटर, नहीं, एनर्जी दैट मींस इधर हमें पोटेंशियल की बात करनी है। ठीक है, सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिफाइन किया था किससे, U। सो U इज इक्वल टू, हमारे इक्वेशंस क्या है, V इनटू Q। ठीक है, ये हमारा जनरल इक्वेशन है। ऑलराइट, चलो देन आफ्टर हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इधर चार्ज की तो बात ओके, इधर हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सो पोटेंशियल की जो बात करेंगे, व्हेन दिस स्फीयर व्हिच आर द चार्ज, दैट मींस उसका जो है इक्वेशन हमने लिखा kq डिवाइड बाय r। बट जब कोई चार्ज नहीं होगा, क्या, व्हेन चार्ज नहीं होगा दैट मींस q इज इक्वल टू 0 होगा, तो पोटेंशियल कितना होगा,
ऑब्वियसली कोई चार्ज है ही नहीं स्फीयर पे, तो पोटेंशियल उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो v में से जब v जीरो भी इधर लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं। तो एवरेज टोटल v कितना हो गया, सो v में से जब टोटल v कितना हो जाएगा, तो v फाइनल v में से which is equal to v plus v0 divided by 2, that means ये and ये जो है उसका एडिशन divided by 2, so therefore v को as it is रहने दो, पहले v0 की जगह पे 0 लिख दो and divided by 2, ओके चलो, so therefore 0 का as it is है। now v की वैल्यू क्या है वो पुट कर दो, क्या है k q divided by 2 as it is है into r, so ये हमारा v फाइनल होगा। यही इंपॉर्टेंट है कि क्या हमें करना है कि व्हेन चार्ज नहीं होगा तब क्या होगा स्फीयर का, तब का पोटेंशियल कितना होगा, v is equal to 0 होगा। तो हमें क्या करना है कि v फाइनल क्या कंसीडरेशंस करना है यहाँ पे, which is we have to consider this one। चलो तो अभी ये वैल्यू हमें मिल गई, so we have to put over here कि v की वैल्यू कितनी आई है, kq divided by 2r मल्टीप्लिकेशन ऑफ ये q, तो as it is है, ओके चलो, so therefore क्या हो जाएगा, k q square divided by 2r, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा आएगा, ओके दिस वन, k q square divided by 2r, क्लियर। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने जो एमसीक्यू लिया हुआ है गुडकेट के एग्जाम में से ही लिया हुआ है, ठीक है। सो इस टाइप का एक आ सकता है, एंड यस हमारे जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट फार्मूला थी व्हिच इज दिस वन, सेकंड फार्मूला थी व्हिच इज दिस वन, तो उसके बेसिस पे से ये आंसर हो गया, ठीक है। चार्ज 1 माइक्रोकूलम आर placed at each of the four corners of square of side 2√2 meter, okay, the potential at the point of intersections of the diagonal is how much। चलो सो क्वेश्चंस पहले मैं क्वेश्चन के हिसाब से फिगर बना लेते हैं कि जो डेटा है उसके बेसिस पे से फिगर बना लो, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल। क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल भी फाइंड आउट करना है, ठीक है, बट किसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वो तो हमें डेटा पे से ही पता चलेगा, ठीक है। एंड ऑप्शन भी लिख देते हैं पहले, ऑप्शन नंबर ए 18 into 10⁻³ ऑप्शन नंबर बी 1800 वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी 18√2 into 10⁻³ वोल्टेज, एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ अबव, ऐसा कुछ है, ठीक है। एंड डेटा के हिसाब से हम बात करें कि डेटा में क्या दिया हुआ है, हमें चार्जेस दिया हुआ है, कितना चार्ज q, q की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 माइक्रोकूलम है, कितना है 1 माइक्रोकूलम, सो माइक्रोकूलम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके कीर्तन ऑप्शन ए, ओके देन आंसर किसी को पता हो तो दे कैन राइट, then after we have to solve, कुछ भी प्रेडिक्शंस करो एटलीस्ट, तीसा पटेल, ऑलराइट चलो देन उसके बाद किसी को नहीं पता, ओके प्रिया वालिया ऑप्शन ए, कृपल ऑप्शन ए, ऑलराइट चलो आई थिंक सो, ओके दिशा पटेल ऑप्शन ए, ओके आंसर हमारा ऑप्शन ए आएगा, विच आर द करेक्ट आंसर। चलो सो कैसे आता है देख लेते हैं, स्क्वायर दिया हुआ है, मे बी डेटा कैन बी चेंज, स्क्वायर दिया होगा दैट विल बी ओके, बट चार्ज की वैल्यू चेंज हो सकती है, इधर कितना है 1 माइक्रोकूलम है, एग्जाम में 2 माइक्रोकूलम भी कर सकते हैं, तो वही हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो सो ऐसा कुछ लिया कि 1 माइक्रोकूलम व्हिच आर द प्लेस 4 कॉर्नर्स 1 2 3 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, एंड उसकी साइड क्या है 2√2, सो स्क्वायर है तो ईच एंड एवरी साइड्स आर इक्वल, एंड हर एक जगह पे चार्ज है, इधर q1 q2 q3 एंड q4, राइट, बट ईच एंड एवरी जो चार्ज है वो डिफरेंट नहीं है, दैट मींस q1 is equal to q2 is equal to q3 is equal to q4 is equal to 1 माइक्रोकूलम हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलो देन आफ्टर क्या बताया था, पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शंस ऑफ द डायगोनल्स, ओके मास्टर बी ऑप्शन ए, यस करेक्ट वन। चल सो क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारा डायगोनल है स्क्वायर का,
पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। उसका आंसर किसी ने बताया कि ऑप्शन नंबर ए विच आर द करेक्ट आंसर एंड वही आंसर सही है। बट कैलकुलेटेड से हिसाब से कैसा आता है, बिकॉज ये डिस्टेंस अभी 2√2 है। एग्जाम में 3√2 दे सकते हैं, 5√2 दे सकते हैं, कुछ भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। एज वेल एज द चार्ज भी वो लोग चेंज कर सकते हैं। दैट टाइम यू हैव टू अडॉप्ट द मेथड। मेथड के हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि एक का फाइंड आउट कर लो कि ये डिस्टेंस पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या ये डिस्टेंस, तो देखो स्क्वायर है तो ईच एंड एवरी एंगल्स जो होता है वो 90 90 90 होता है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट डिस्टेंस इधर हम रफली ड्रॉ करें तो ये हमारा डायगोनल है, ये हमारा 2√2 एंड दिस इज आवर √2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90। सो 90 हो जाएगा तो ये कितना होगा, वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, राइट। सो एज वी नो दैट क्या हो जाएगा 2√2 स्क्वायर प्लस 2√2 स्क्वायर, ठीक है। चलो, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा 2 into 2 का स्क्वायर 4 multiplication 2 that means what 8 and इधर भी क्या आ जाएगा 8, ओके। सो देयरफॉर अंडर ऑफ 16, सो कितना आ जाएगा इधर डायगोनल 4 मिल जाएगा। दैट मींस ये जो डिस्टेंस है पूरा which is our 4, कितना मिल जाएगा 4, तो 4 मिल गया। दैट मींस व्हाट O से ये पॉइंट है ये हमारा 2 हो जाएगा, दिस इज आल्सो 2, दिस इज आल्सो 2 एंड दिस इज आल्सो 2, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। चलो, सो उसके बाद में क्या करना है हमें, ऑब्वियसली इधर आर्क व्यू में से डिस्टेंस की बात करें तो 4 डिवाइड बाय 2 हमने किया, सो 2 मीटर यू कैन राइट, ओके। एंड यहाँ पे मीटिंग एंडिंग का आ रहा है, सो स्टिल वी हैव 10 मिनट्स, ओके। सो ये एमसीक्यू तो सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद 2-3 एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाएंगे छोटे छोटे। चलो, सो ये हो गया, डिस्टेंस मिल गया। तो देखो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस वो सेम ही होगा। तो अभी पोटेंशियल की जो बात करनी है तो कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, जनरल इक्वेशंस लिखे तो क्या हो जाएगा V = KQ / R, ये हमें इक्वेशंस पता है। सो हमें तो V1 V2 V3 एंड V4 ये करना है एंड ऑल चार्जेस आर द सेम। सो 1 माइक्रोकूलम ये है, दैट मींस ईच एंड एवरी टाइम हमें करने की जरूरत नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 कर देना है, ठीक है। इंडिविजुअली करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, बट इधर करने की जरूरत नहीं है। चलो, सो वैल्यू पुट करनी है। सो 4 एज इट इज, वैल्यू ऑफ द k व्हिच इज इक्वल टू 9 * 10⁹। बात करते हैं चार्ज की। चार्ज की वैल्यू कितनी है हमारी 1 माइक्रोकूलम है, so therefore 1 * 10⁻⁻⁶। माइक्रो की जगह पे नैनो भी कर सकते हैं, नैनो होगा तो 10⁻⁹ हमें कंसीडरेशंस करना पड़ेगा। चलो, बात करते हैं ये r की, तो r की वैल्यू कितनी है 2 ही है, ठीक है। सो इसका कैलकुलेशंस करोगे आप तो ये आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा V = 18 * 10⁻³ वोल्टेज, ये हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो इधर से भी पता चलेगा 10⁹ - 10⁶, दैट मींस 10⁻³ इधर सेट हो जाएगा। बाकी का कैलकुलेशंस कर लो तो ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो। एंड दूसरा, कुछ के एग्जाम में टाइम हमें मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंस है, ओके। सो सम कौन से आ सकते हैं, बहुत लॉन्ग जो होगा कैलकुलेशंस वो नहीं आ सकता, ट्रिकी मेथड से ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज उसका सॉल्यूशन हमें नहीं लिखना है, हमें जो आंसर है उसको टिक करना है एंड एक गलत भी होगा तो उसके भी मार्क आपके डिडक्ट हो गए। तो उसको सॉल्व अच्छे से करना है, डेटा डायरेक्टली मे बी दे कैन चेंज, अच्छे से रीड करना पहले क्वेश्चन, देन आफ्टर यू हैव टू सॉल्व। एंड ये भी एमसीक्यू आ चुका है एग्जाम में। क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस, 3 कैपेसिटर्स ऑफ 2 पिकोफैराड, कितने 3 कैपेसिटर है, तो 1 का आंसर यानी कि 1 की जो वैल्यू है दैट मींस C1 = 2 पिकोफैराड, C2 = 3 पिकोफैराड, C3 = 4 पिकोफैराड, ठीक है। ऐसा कुछ दिया है व्हिच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो पैरेलल रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल की जगह पे सीरीज भी कर सकते हैं, डेटा विल बी सेम। तो अभी किसमें ये कनेक्शन है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, किसमें कनेक्टेड है पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। चलो, सो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, ओके। सो यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना चाहते हो तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट
बट एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं है। इधर ऐसा कुछ कनेक्शन है कि 3 कैपेसिटर है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। सो क्या आंसर आएगा? 9 पिकोफैराड टीसा मानसी, ऑलराइट, मानसी पटेल, ऑलराइट, 9 पिकोफैराड। चलो देन 9 पिकोफैराड नील मिस्त्री, 9 पिकोफैराड, ईसा आहिर 9 पिकोफैराड, देन बिनी मास्टर, ईसा पटेल, ओके। चलो देन मास्टर बिनी, ओके, तनय पटेल 9 पिकोफैराड, ऑलराइट, पटेल कृतज्ञ, ओके, कृपल 9 पिकोफैराड, ओके, कृपल 9 पिकोफैराड, ऑलराइट। चलो आंसर इज करेक्ट, एकदम सिंपल सा है, जैसे इधर हमें कॉन्सेप्ट लिखा था 9 पिकोफैराड, भाविका पटेल, ऑलराइट। चलो सो ऑलमोस्ट हर एक लोगों का आंसर सही है। क्या आंसर आ जाएगा? ये जो दिख रहा है उसका क्या कर लेना है, हमें एडिशंस करना है, बट क्वेश्चन अच्छे से रीड करना पड़ेगा। तो इक्वेशंस क्या अप्लाई होगा? C पैरेलल व्हिच इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जो भी है उसका एडिशंस कर दो, दैट मींस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? 9 पिकोफैराड, ठीक है। सो ABCD लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता ही है, बट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। अभी भी बता रहा हूं, पैरेलल की जगह पे सीरीज कर सकते हैं, एंड यू आल्सो हैव टू ट्राई कि ऑप्शन में सीरीज का भी आंसर दिया है। इधर ऑप्शन नंबर ए का 9 है, देन आफ्टर ऑप्शन नंबर बी 12 डिवाइडेड बाय 13 है, ऑप्शन नंबर सी 13 डिवाइडेड बाय 12 है, एंड ऑप्शन नंबर डी 1 डिवाइडेड बाय 9 है। सो कोई सीरीज का भी आंसर इधर दिया होगा, एंड कंफ्यूजिंग होगा, क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में डिफरेंट हो रहा है, रेजिस्टेंस के लिए लिटिल बिट डिफरेंट इक्वेशन है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो अच्छे से दिमाग में रखना है आपको। चलो एक जनरल इक्वेशन अभी मैं आपको बताता हूं कि सपोज 100 कैपेसिटर, कितने कैपेसिटर है हमारे? 100 कैपेसिटर है, 100 कैपेसिटर वी हैव टू कनेक्ट इन पैरेलल, एंड हर एक की जो वैल्यू है 2 नैनो फैराड है। सो व्हाट इज अवर टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क? क्या क्वेश्चंस क्या है? अगेन कितने कैपेसिटर है हमारे पास? 100 है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड 2 नैनोफैराड ईच एंड एवरी का आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो हमें फॉर्मूला तो आपको पता है कि C इज इक्वल टू C पैरेलल इज इक्वल टू कौन सा हो गया? C1 प्लस C2 अप टू सो ऑन प्लस C100, ऐसा कुछ होगा। 200, ओके, कीर्तन, ऑलराइट, सही है। देन मानसी पटेल, ऑलराइट। चल, तो जनरल फॉर्मूला कौन सी लगेगी? When the capacitor which is having same value, that means C1 is equal to C2 is equal to C2, C3 is equal to up to so on, हर एक की वैल्यू जो सेम होगी, so that time we don't have to apply this formula, you only have to directly go with this formula, n into C. So n that means what? कितने numbers of capacitor की बात हो रही है? 100, okay, मास्टर मीनी करेक्ट फॉर आंसर। कितना जाएगा इधर? 100। कैपेसिटर कितना है? 2 है, तो therefore 200 नैनोफैराड आंसर आएगा। ये आपको दिमाग में रखना है। मे बी क्वेश्चंस में ऐसा भी कुछ आ सकता है कि इक्वेशंस क्या हो जाएगा व्हेन दे हैव सेम वैल्यू। ओके, तनय पटेल सही आंसर है, ठीक है, ऑलराइट। चलो देन आफ्टर दूसरा क्वेश्चंस लिख लेते हैं। चलो सो अच्छे से क्वेश्चंस समझना है। Which of the following equations doesn't represent energy of charge capacitor? Questions once again, क्या बताया भाई? Which of the following equations doesn't represent the energy of the charged capacitor? तो चार्ज कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, उसमें से जो एक इक्वेशन है वो गलत है, वो हमें फाइंड आउट करना है। चलो सो ऑप्शन नंबर ए में लेता हूं आप इधर q स्क्वायर डिवाइड बाय 2 से, ऑप्शन नंबर बी 1 डिवाइड बाय 2 q into v, ऑप्शन नंबर सी 1 डिवाइड बाय 2 this one qv square, and ऑप्शन नंबर डी हाफ cv square। चलो सो फाइंड आउट करो कौन सा गलत है। दैट मींस वी ऑलरेडी
डिस्कस कि एनर्जी स्टोरेज थ्रू कैपेसिटर व्हिच इज हैविंग 3 आंसर, बट एक गलत है, तो इसमें से क्या आएगा आंसर बताओ, चलो फटाफट। आई थिंक सो वन स्टूडेंट, ओके, मानसी पटेल ऑप्शन सी, प्रिया ऑप्शन सी, ऑलराइट, दिशा पटेल, प्रार्थना शाह ऑप्शन सी, पटेल कृपल, ऑलराइट, ऑप्शन सी, ईसा आहिर, ऑलराइट, ओके, चलो। सो आई थिंक सो अभी आपको पता चला कि कॉन्सेप्ट लर्न करना कितना इंपॉर्टेंट है, कि इस टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं, कि इधर हमने पहले एक बार नोट्स बना लिए चैप्टर वाइज, सो दैट विल बी इजी फॉर अस कि ऐसा कुछ एमसीक्यू आएगा तो हमें इजी रहेगा, एंड आएगा ही कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। सो इधर से एनर्जी स्टोर इनटू कैपेसिटर q² divided by 2c, देन ऑप्शन नंबर बी वो भी करेक्ट है, एंड दिस वन आल्सो करेक्ट, तो कौन सा गलत है, दिस इज आवर रॉन्ग वन, ओके। सो यही हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एमसीक्यू में दूसरा भी चेंज कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी नहीं देंगे, इसको ऑप्शन नंबर सी दे देंगे ना, अदर ऑप्शन नंबर डी क्या कर देंगे, ऑल ऑफ द अबव कर देंगे, तब आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव व्हिच इज अवर करेक्ट आंसर।